So good morning, dear student. Today we are going to be discuss about the combined effect of bending and torsion in the shaft. When the shaft is subjected to torsion as well as bending, and what will the effect of the both combined effect on that shaft? We will be see here. So let's see. Okay, so suppose this is a shaft where this force P is applied. So because of this load P, some bending effect is also acting over here, and this twisting moment T is also applied here. So in this case, dear, so see here. So suppose this shaft is made of many elements like A, B, and C, and these individual elements are subjected to the shear force. The shear stress is tau, and bending stress. Bending stress की that bending stress is how much? That is sigma. So any that beam structure having it is a made of that many element, number of element is there, and each element are subjected to these bending stress and as well as a torsion shear stress. Okay, so we all know that the principal stress formula I have taken, this is I recalled from unit number 1. So principal stress, you all know that sigma 1 sigma 2 equal to sigma x plus sigma y by 2 plus minus under root sigma y minus sigma x by 2 का whole square plus tau square. So this is the basic formula we have derived in that unit 1. So we just see compare here. So this sigma tau is acting here. So the stress which is acting toward that y direction, not actually one mistake is there. We could do one thing correct this one. So actually the bending stress will act downward. This bending stress will act downward. This and this like this from here is this is suppose this is a element. Let's थोड़ा big one कर लेते हैं. This is a element. So bending will act this toward this. This is called a sigma, and this is the shear stress will act here, here and here everywhere. ठीक है. So ये एक एलिमेंट है. So bending stress, suppose you are applying the load here, तो it's quite obvious it will act downward direction. ठीक है. Bending stress. So here we can say the sigma y is equal to sigma x and sigma x equal to 0. Sigma x is equal to 0. So just to put the all respective values to this equation, and tau is equal to tau here. Here the tau is equal to tau. So put the all the values. Sigma y is equal to kitna? Y sigma, and sigma x is equal to 0. So ये पार्ट 0 हो गया, ये हो गया सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी आप रख दीजिए. सो इट बिकम सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर. ओके, ठीक है. तो ये अब नाउ द अबव दिस इक्वेशन, सपोज इफ इट इज 1, सो नाउ इट्स बिकम लाइक दिस. Okay, now you write the all the respective value. You just put the all the respective values of sigma and tau. So you know that, dear students, you know already know that about the this relation. Which one? M upon I is equal to सिग्मा अपान y. यहाँ से आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू, समझना इसको, सिग्मा इज इक्वल टू m upon I इंटू वाई. ये आराम से आप लिख सकते हो. तो अब इसको लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू m upon
आई मीन्स क्या होता है, पाई अपॉन 64 फॉर द सर्कुलर शाफ्ट के लिए है ना, पाई अपॉन 64 डी की पावर 4। एंड डियर स्टूडेंट इसके लिए समझना है इसको, है ना, एंड बाय की जो वैल्यू होगा आउटर फिलामेंट्स मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये डायमीटर का आधा, सो इट्स बिकम हाउ मच, d/2। ठीक है, d/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो d से एक d यहाँ से कट जाएगा तो ये d³ हो जाएगा। ठीक है, और ये 264 ये हो जाएगा 32, 2 से 64 कटेगा तो ये दिस रिलेशन बिकम सिग्मा इज इक्वल टू 32 m, सिग्मा इज इक्वल टू 32 m पाई अपॉन डी क्यूब। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा। सो आपने यहाँ ये वैल्यू रख दी, सिग्मा इज इक्वल टू 32 m पाई डी क्यूब। ये चलो आओ इसको रखो इधर, इधर रखो इसकी जगह, यहाँ पर, यहाँ सिग्मा की जगह। तो जैसे यहाँ पर बाई 2 है तो ये 32 का आधा हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 m पाई डी क्यूब प्लस माइनस अंडर रूट सेम, यहाँ पर भी बाई 2 है तो ये फिर से ये 32 का हाफ हो जाएगा 16 m पाई डी क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं इस पार्ट को। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया किसका, बेंडिंग, फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन से हमने निकाल लिया द रिलेशन विद द बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग मोमेंट। चलिए अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको तुमको ये पता है कि द टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है आपको पता है ना। तो टॉर्सन इक्वेशन होती है टी अपॉन से टाउ अपॉन आर, ये होती है। सिमिलरली हमको क्या चाहिए, टाउ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से टाउ इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे, टी अपॉन जे, टी को तो कुछ करना ही नहीं है। अब आपको देखो टी अपॉन आर, टी आर अपॉन जे क्या होता है, पाई बाई 32, पोलर है, पाई बाय 32 डी की पावर 4, और ये वाला जो आर है ये भी हो जाएगा d/2। समझ में आ रहा है, तो ये 2 से ये कट जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16t अपॉन डी क्यूब। पाई तो है ही है इसका, तो पाई डी क्यूब, 16t पाई डी क्यूब, ये यहाँ रख दिया 16t पाई डी क्यूब। अब क्या करिए, जो जो कॉमन है तो 16 कॉमन है, यहाँ देखो पाई डी क्यूब कॉमन है सब में, तो इसको बाहर कर लिया, तो ये m, एक ये वाला m, एक इसके अंदर का m स्क्वायर टी स्क्वायर, ये देखो ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला बन गया। अगर आपको ये क्या है, दिस इज फॉर द कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, आप इससे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हो व्हेन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू torsion as well as a bending stress, because the torsion this torsional, ये जो टाउ लग रहा है इसमें, so when they is subjected to torsion, twisting movement, so a shear stress will develop. Why shear stress will develop? Because the torsion is applied at the surface of the shaft, जो चीज सरफेस में लगती है वो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बेंडिंग और शेयर स्ट्रेस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म। सो अब हम दिस फॉर्मूले से, ये वाला जो नया फॉर्मूला मिला, इसकी हेल्प से हम वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दैट शाफ्ट। चल यहाँ तक का काम आपको समझ में आ गया, ये मैं कल ऊपर का सुधार दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब तुमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गया इन टर्म ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस की लोकेशन और ओरिएंटेशन भी तो चाहिए। तो ओरिएंटेशन पोजीशन मतलब उसका किस पोजीशन पे है। तो पहले भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan थीटा। चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, मैं तुमको याद दिला देता हूँ। क्या लिखा था, tan थीटा 1 इज इक्वल टू, क्या लिखा था पहले, होता था, क्या पढ़ा था आपने, टाउ अपान सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। अब इसको ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 2 टाउ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। रख दो वैल्यू। सिग्मा वाई इक्वल टू कितना है, सिग्मा, ये देख लो सिग्मा है, ठीक है, और टाउ है यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 टाउ अपान सिग्मा, ये ऊपर जाएगा ना ये वाला 2, ये वाला, तो 2 टाउ अपान इतना। अब इसकी वैल्यू रख दो जो अभी निकाला था, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी बाई एम, और यहाँ पर tan इनवर्स होगा 1/2 tan इनवर्स, गलत लिखा हुआ है, 1/2 tan इनवर्स, 1/2 tan इनवर्स टी अपान एम। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको θ1, और θ1 में आप 90 जोड़ दोगे, यू विल गेट द θ2। ये तो पुराने कॉन्सेप्ट है। नाउ अब टाउ मैक्स, मैक्सिमम टाउ मैक्स का फॉर्मूला था, क्या था, सिग्मा, इसी में यहीं पर लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, यही था, ठीक है। यहाँ पर फिर वैल्यू रख दो, ये ऐसा हो जाएगा, इसकी फिर वैल्यू रख दो अंदर की, अभी जो पुरानी रखी पिछले बार। तो नाउ इट्स बिकम लाइक दिस, इसमें से 16 पाई डी क्यूब कॉमन ले लो, तो ये बच गया एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो आप इस, अब जो टॉर्सन में, जब शाफ्ट में आपसे प्रिंसिपल स्ट्रेस ओरिएंटेशन एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप पूछेगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने अभी डिराइव किया है, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको उतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछ सकता है, फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम इंड्यूस स्ट्रेस इन द शाफ्ट, और आपको T और M गिवन होगा, तो बाय यूजिंग दैट रिलेशन डायरेक्टली यू कैन सॉल्व, you can calculate the principal stress and their position or their orientation of the principal stresses। अब चलते हैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, ये आया हुआ है ये RGB में। So this is the problem statement, dear student. A shaft section 100 mm diameter is subjected to bending moment. That magnitude of the bending moment is this, and a torque is this. Find the maximum direct stress on section and specify the position of plane on which it's acts. Find also what stress acting along can produce the same state, ठीक है। यहाँ से नया चीज चालू हो गया, find also what stress along can produce the same strain, take the Poisson's ratio is 0.25। सो इसको हम अपन बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये वाला पार्ट फाइंड आउट करो। लिखा है द फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, maximum direct induced on that section, maximum induced stress, that is the principal stress, वो निकालना है। आपको T दे दिया है क्वेश्चन में, M दे दिया है, एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज आल्सो गिवन। तो आप पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस यू जस्ट फाइंड आउट, कैसे निकालोगे, वही रिलेशन जो आपने पिछला देखा, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू 16 अपान पाई डी क्यूब एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, all respective value just put here। so ये 100 है, 100 रख दिया, m कितना है 4000 है, 4000 रख दिया। अच्छा ये बेटा mm सॉरी ये मीटर में था, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
सो mm में कन्वर्ट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया 4 × 10⁻⁶ एंड इज 6 × 10⁻⁶। सारी रेस्पेक्टिव वैल्यू आपने रख दी। सो आपका जो यहाँ से सिग्मा 1, यहाँ पर एक बार प्लस लोगे, तो जब प्लस लोगे तो ये साइन ये आ जाएगा 57.1 मेगा पास्कल, और जब माइनस साइन लोगे तो ये आ जाएगा -16.35 मेगा पास्कल। तो माइनस का मतलब कंप्रेसिव है, इसलिए हमने यहाँ का माइनस साइन हटा के ब्रैकेट में 6 को लिख दिया। देन नाउ द फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन 2θ1 = t/m, वेयर t इक्वल टू कितना था 6000 और m ये 4000 था, वो कट टूट जाएगा तो ये इतना ही बचेगा 6/4। देन θ1 = 28.15, 90 डिग्री जोड़ दो उसमें, सो इट्स बिकम θ2। यही छोटा सा क्वेश्चन था, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर पूछा है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताया था, ये पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेन इसको यहाँ पर होता है स्ट्रेन 1/e सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, दोनों स्ट्रेस लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर होती है ना। तो मैक्सिमम बोल रहा है, मेजर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन 1 लेंगे ना कि एप्सिलॉन 2। अगर इसमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन ना करके माइनर बोल देता तो आपका ये वाला रिलेशन ये जो है ये हो जाता 1/e सिग्मा 2 न्यू सिग्मा 1, यहाँ से मिलता तुमको एप्सिलॉन 2। ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, मेजर में ये पहले लेंगे सिग्मा 1, ठीक है। अब इसको रख दी, इसकी वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 तुमने निकाल लिया। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है न्यू की, न्यू इज द पॉइजन रेशियो 0.25, तो ये आया 16.1875 ई, ठीक है। यहाँ तक आपको। फिर क्वेश्चन में दिया है, पूछा एक कंडीशन इज देयर, इफ सिग्मा इज स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग टू प्रोड्यूस द सेम स्ट्रेन, मतलब इसी अमाउंट का स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेस, मतलब जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन निकला उसी अमाउंट का स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। एट दैट केस यू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट उस पर्टिकुलर प्लेन पे। सो सिंपली अब उसके बराबर हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू, मटेरियल तो सेम ही है, तो आपने जैसे जैसे इसको रखा तो ई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका सिग्मा इक्वल टू 16.1875 मेगा पास्कल। सो ये न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व होंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा। सो let's see, this is about the all about this numerical, okay okay so this is about numericals and this is small concept under this the last at the last of this unit 3rd, ठीक है। So thank you so much for being here.